Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everyone. My name is Khurshid Anwar, and today I am going to teach you a wonderful class that is present continuous tense passive voice. Brothers and sisters, you know very well yesterday we studied 20th day of 90 days English speaking course, and yesterday I taught you one lesson from grammar that was present continuous tense, and I told you that you'll have to remember two pages by heart. Here you'll have to recite the lesson. Just now inshallah ta'ala I will ask you and I will call your name, then I request you that you should recite the lesson like me. First of all, I'm going to recite the lesson now, and I request you that you should also recite like me. So yesterday we studied present continuous tense. So lesson number was lesson number 20. Present continuous tense active was rule subject plus is rm plus ing form plus subject. For example, half conjugation: I am, we are, you are, they are, names are, these are, those are, he, she is, it is, name is, this is, that is. I'm not, you are not, you are not, they are not, these are not, those are not, he is not, she is not, it is not, this is not, that is not. Am I, are we, are you, are they, are names, are these, are those. Is he, is she, is it, is name, is this, is that. Why am I, why are we, why are you, why are they, why are names, why are these, why are those. Why is he, why is she, why is it, why is name, why is this, why is that. And full conjugation is that आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, ही इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, शी इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रही है, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यू आर नॉट टीचिंग, तुम नहीं पढ़ा रहे हो, ही इज़ नॉट टीचिंग, वो नहीं पढ़ा रहा, शी इज़ नॉट टीचिंग, वो नहीं पढ़ा रही है. एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, आर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो, इज़ ही टीचिंग, क्या वो पढ़ा रहा है, इज़ शी टीचिंग, क्या वो पढ़ा रही है. वाई एम आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई आर यू टीचिंग, तुम क्यों पढ़ा रहे हो, वाई इज़ ही टीचिंग, वो क्यों पढ़ा रहा है, वाई इज़ शी टीचिंग, वो क्यों पढ़ा रही है. आई होप डैट यू हैव रिमेंबर्ड द लेसन लाइक मी. उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मेरी तरह सबक याद किए होंगे. ग्रामर का सबक, मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर नामी इस किताब से. ये जो अभी सबक मैंने सुनाया है ये लेसन नंबर 20 का सबक था, जहाँ पर मैंने आपको दिया था कि क्लास का नाम, रोल और कंजुगेशन आपको अच्छी तरीके से याद करके लाना है. उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर याद करके लाए होंगे. अब मैं यहाँ पर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एक एक करके आपको मौका दूंगा और मैं कहूँगा कि माइक ऑन करो और फौरी तौर पर आप अपना माइक ऑन कीजिएगा. और डियर स्टूडेंट्स, जब मैं कहूँ कि पूरा गर्दान सुनाइए, इकट्ठे अगर सुनाइएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा. मैं किसी को कहूँगा हाफ कंजुगेशन सुनाए तो वो हाफ कंजुगेशन सुनाएंगे, जिस किसी को कहूँ कि मैं फुल कंजुगेशन सुनाइए वो फुल कंजुगेशन सुनाइएगा. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कादिर साहब आप हाफ कंजुगेशन सुना दीजिए. जी सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Subject plus is RM plus ing form plus object. I am, he is, she is, it is, name is, this is, that is. We are, you are, they are, names are, these are, those are. He is not, he वो नहीं है. He is not, she is not, it is not, name is not, this is not, that is not. We are not, are we, वो हम नहीं है. We are, you are, they are, names are, these are, those are. क्या मैं हूँ, I am. एम Is आई, he, एम को पहले और am, आई को बाद में. जी, यस. am I. Is he, is she, is it, is name, is this, is that. Are we, are you, are they, are names, are they, are there, are those. आर दीज आर दोज. यस. Are these, are those. मैं क्यों हूँ, why I am. Why is he, why is she, why is it, why is names, why is this, why is the, why is that. Why are he, why are we, why are you, why are they, why are names, why are there, why are those. चलिएगा, वेरी गुड. यहाँ पर फुल कंजुगेशन के लिए मैं नजमुस साकिब को कहूँगा कि प्लीज़ माइक ऑन करें और फुल कंजुगेशन सुनाएं. Bismillahirrahmanirrahim. I am teaching, you are teaching, he is teaching, she is teaching, I am not teaching, you are not teaching, he is not teaching, she is not teaching. Am I teaching, are you teaching, is he teaching, is she teaching,
Why am I teaching? Why are you teaching? Why is he teaching? Why is she teaching? दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड डियर स्टूडेंट्स, नौशीन को कहूँगा कि प्लीज़ आप हाफ कंजुगेशन सुनाएं। मिसेज नौशीन। Rule subject plus is rm plus ing form plus object. Half conjugation. I am. He is, she is, it is, name is, this is, that is. We are, you are, they are, names are, these are, those are. I am not. He is not, she is not, it is not, name is not, this is not, that is not. We are not, you are not, they are not, names are not, these are not, those are not. Am I? Is he, is she, is it, is name, is this, is that. Are we, are you, are they, are names, are these, are those. वेरी गुड। Why am I? Why is he? Why is she? Why is it? Why is name? Why is this? Why is that? Why are we? Why are you? Why are they? Why are names? Why are these? Why are those? वेरी गुड। अबू ज़र, आप मुझे प्लीज़ फुल कंजुगेशन सुना दीजिएगा। अबू ज़र, आपका नाम एक दफ़ा मैंने और भी लिया था। यस। Bismillahirrahmanirrahim. I am teaching, you are teaching, he is teaching, she is teaching, I am not teaching, you are not teaching, he is not teaching, she is not teaching. Am I teaching? Are you teaching? Is he teaching? She is teaching. Why I am teaching? Why are you teaching? Why is he teaching? Why is she teaching? वाई इज शी टीचिंग। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, सब बढ़िया सुना रहे हैं। यहाँ पर पठान रिजवानुल्लाह से कहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे हाफ कंजुगेशन सुना दीजिए। मिस्टर पठान रिजवानुल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. I am, we are, you are, they are, these are, names are, those are. He is, she is, it is, name is, this is, that is. I am not, we are not, you are not, they are not, names are not, these are not, those are not. He is not, she is not, it is not, these name is not, this is not, that is not. Am I? Am I? Am I? Are we? Are you? Are they? Are our names? Are these? Are those? Yes. Are is he? Is he? Is she? Is it? Is name? Is this? Is that? Is that? Very Why good. am I? Why are we? Why am I? Why are we? Why are you? Why are they? Why are names? Why are these? Why are those? Why is he? Why is she? Why is it? Why is name? Why is this? Why is that? चलिएगा, माशाल्लाह, बहुत खूब, शाबाश। Now I am clapping because you have recited well and everybody has remembered. अल्हम्दुलिल्लाह, सभी लोग सबक याद किए हैं। आपको सबक याद करके रेडी रहना है, कब आपका नाम आ जाए कोई गारंटी नहीं है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर चलेगी, एप्लीकेशन में चलेगी। अगर आप सबक याद नहीं करके लाएंगे और आपका नाम पुकार दिया गया तो कितनी बेइज्जती का एहसास होगा आपको कि आपको जो है सब कुछ सारे बच्चों के सामने थोड़ा बहुत इंसल्ट होगा कि आपने सबक याद करके नहीं लाया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ रोज़ के सबक को आप ज़रूर याद करके लाएं। और मैं आज से लेकर के चैप्टर नंबर 60 तक, ये जो किताब है मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर हिस्सा अव्वल, इसमें लेसन नंबर 20 से लेसन नंबर 60 तक पूरे एक चिल्ला तक डियर स्टूडेंट्स मैं सबक सुनता हूँ, एक एक करके सबक सुनता हूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे आपको इस पूरी किताब का हाफिज़ बनाना है। क्लास का नाम, रूल और कंजुगेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसमें गर्दान से फारिग हो गए थे तो ये एक प्रैक्टिस का जुमला था जो कि बहुत अच्छा है। जैसे मैं लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को, इसी तरीके की प्रैक्टिस मेरी किताब में भी लिखी हुई है। और अब मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मैं प्रैक्टिस के जुमले बोलने जा रहा हूँ, आप लोग पूरी तैयारी के साथ रहें। जैसे ही मैं उर्दू सेंटेंस बोलूँ और आपका माइक ऑन करूँ, आप फौरी तौर पर अंग्रेज़ी बोलिए। प्रैक्टिस का एक तरीका यहाँ बहुत अच्छा स्पीकिंग से दिया गया था। फॉर एग्जांपल, अगर कहना है कि मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो यू आर स्पीकिंग, वो बोल रहा है ही इज़ स्पीकिंग, शी बोल रही है शी इज़ स्पीकिंग, जैद बोल रहा है जैद इज़ स्पीकिंग, राशिद बोल रहा है राशिद इज़ स्पीकिंग, खालिद बोल रहा है खालिद इज़ स्पीकिंग। हम लोग बोल रहे हैं वी आर स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हु इज़ स्पीकिंग, जैद अमर बकर बोल रहे हैं, जैद अमर बकर आर स्पीकिंग। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको जुमले बोलने हैं फटाफट।
इधर से कान में उर्दू का जुमला जाए और ज़ुबान से, यानी यहाँ पर प्रोसेस होता है, ये हमारा भेजा है, हम जब कुछ यहाँ सुनते हैं तो ये यहाँ जाता है। अगर यहाँ पर नॉलेज होगा तो फौरी तौर पर वो रिज़ल्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा, हमारी ज़ुबान से सही जुमले निकलेंगे। तो जब आपने गर्दान याद कर लिया, जब आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया, तो जुमले बोलने बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर किताब में स्पीकिंग से जुमले लिया गया है, मैं यहाँ पर वर्ब बदल सकता हूँ। स्पीकिंग के जगह प्ले को यूज़ कर सकता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। कौन खेल रहा है, हु इज़ प्लेइंग, जैद खेल रहा है, जैद इज़ प्लेइंग, राशिद खेल रहा है, राशिद इज़ प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम्हारे साथ कौन खेल रहा है, हु इज़ प्लेइंग विद यू। इस तरीके से ढेर सारे जुमले डियर स्टूडेंट्स हम बोल करके मशक करेंगे। यहाँ पर आप वर्ब और भी चेंज कर सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्ले के बजाय आप यहाँ पर राइट को ले लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, वो लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग, शी लिख रही है, शी इज़ राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, मैं लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या तुम इंग्लिश लिख रहे हो, आर यू राइटिंग इंग्लिश, नहीं सर मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग इंग्लिश, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, मैं तो एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए एप्लीकेशन। इस तरीके से जुमले आप प्रैक्टिस करें डियर स्टूडेंट्स। आप फिर वर्ब को चेंज कर दीजिए, आप राइट को हटा करके डियर स्टूडेंट्स यहाँ रीड को ले लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, वो पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग। ज़ुबान ऐसी चलनी चाहिए जैसे कि अंग्रेज़ों की ज़ुबान चलती है। जब तक आपकी ज़ुबान तेज़ नहीं चलेगी डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और अभी तो आपने सबक याद किया है, सबक याद करने के बाद आपने प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी ज़ुबान तेज़ होगी। और डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस को अब अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में इसे यूज़ करने की ज़रूरत है। आई होप सो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मैं कोई और वर्ब चेंज कर सकता हूँ, लर्न को यूज़ कीजिए, लर्न में आईएनजी जोड़कर लर्निंग के मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, तुम सीख रहे हो, यू आर लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, में अरबी नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग अरेबिक। ब्रदर्स एंड सिस्टर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर मैं ही करता रहूँ तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये अभी मैंने क्यों किया है प्रैक्टिस आपके सामने, ऐसा तर्ज सिखाया है डियर स्टूडेंट्स कि इसी अंदाज पर अलग अलग वर्ब से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुख्तलिफ जुमले, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी यस नो क्वेश्चन, कभी डब्ल्यूएच क्वेश्चन को यूज़ करते हुए जुमले बोलने हैं और खूब मशक करनी है। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मशक इंसान को महान बना देती है। दुनिया में कोई भी माँ का लाल अपने माँ के पेट से किसी भी फ़न का फ़नकार बनकर नहीं आता है। एक शख्स को अगर ड्राइविंग में फ़नकारी हासिल करनी है, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर वो ड्राइविंग करना चाहता है तो लाजिम है कि डियर वो ड्राइविंग अच्छा करे, उसके लिए खूब वो प्रैक्टिस करे ड्राइविंग का। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ और जल्दी से मुझे बताइएगा, मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, क्या इंग्लिश है, जल्दी बोलिए। आगे पीछे नहीं बोलना है, जैसे ही माइक ऑन होगी बोलिएगा, जैसे ही माइक बंद करूंगा बंद हो जाइएगा। तुम बोल रहे हो, You are वो बोल रहा है, वो बोल रही है, क्या तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, मेरा भाई बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, क्या खुर्शीद सर नहीं बोल रहे हैं। यस, इज खुर्शीद सर नॉट स्पीकिंग, इज खुर्शीद सर नॉट स्पीकिंग, कुछ इस तरह बोलेंगे, क्यों नहीं, वो तो बोल रहे हैं, क्यों नहीं कि इंग्लिश वाई नॉट, बोलिए क्या इंग्लिश, वाई नॉट ही इज स्पीकिंग,
क्या तुम अरबी बोल रहे हो? आर को यू पर मुकद्दम करके जुमला बोलिए। Are you Are you speaking Arabic? आर यू स्पीकिंग अरेबिक? नहीं, मैं तो अरबी नहीं बोल रहा हूँ। No, I'm नो आई एम नॉट स्पीकिंग अरेबिक। कंटिन्यू प्लीज। कैसे बोलिएगा? No, I'm not. speaking Arabic. वो कैसा बोल रहा है? कैसा के लिए हाउ यूज करना है, बोलिए। How is he speaking? वो कहाँ बोल रहा है? कहाँ की इंग्लिश ले लीजिएगा। वो कहाँ बोल रहा है? Where he is speaking? Where is he speaking? वेयर इज ही स्पीकिंग? वो हमारे सामने बोल रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने की इंग्लिश होती है इन फ्रंट ऑफ अस, तो ही इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अस। कैसे बोलिएगा? He is speaking in front of Speaking in front of us. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। अगला जुमला, मैं सो रहा हूँ। ट्रांसलेट उर्दू इनटू इंग्लिश में ये जुमला मौजूद है। मैं सो रहा हूँ, क्या इंग्लिश है? जल्दी बोलिए। माइक ऑन है। I am sleeping. I'm speaking. वो I am sleeping. क्रिकेट खेल रहा है। Playing cricket. खुर्शीद सर चाय पी रहे हैं, इसकी इंग्लिश बोलिए। खुर्शीद सर इज टेकिंग टी। कैसे बोलिएगा? She said taking. मेरा भाई आज लंदन से आ रहा है। मेरा भाई आज लंदन से आ रहा है। मेरा भाई आज क्या तुम बाजार जा रहे हो? इंग्लिश बोलिए। आर यू गोइंग टू मार्केट? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसकी इंग्लिश बोलिए। तुम क्यों पूछ रहे हो? Why are you asking? हम लोग खड़े हैं की इंग्लिश बोलिए। We are standing. अनवर और राशिद एटीएम के सामने खड़े हैं। अनवर एंड राशिद आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एटीएम। Anwar and Rashid are अब कुछ उर्दू जुमलों का अंग्रेजी तर्जमा, इंग्लिश जुमलों का उर्दू तर्जमा कीजिएगा। लाजिम है कि आप उर्दू तर्जमा करें, न कि इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। व्हाट इज ट्रांसलेशन इन उर्दू? शोर कम करें और अपनी माइक को मोबाइल से दूर रखें, या आप कोई दूसरी डिवाइस जैसे कि ईयरफोन ईयरबड यूज़ करें, वो थोड़ा दूर रख करके बोलें। ऐसा लगता है कि आप अपनी माइक को माइक के साथ ही अपने मुंह को टच कर दिया आपने। डियर स्टूडेंट्स, एक और जुमला, यू आर राइटिंग अ लेटर। ज़रा उर्दू तर्जमा करके दिखाएं। खत लिख रहे हैं। एक जुमला और, इज योर फादर कमिंग टू देवबंद? व्हाट इज इंग्लिश? नहीं, व्हाट इज उर्दू? उर्दू में बोले। आपके वालिद साहब देवबंद से आ रहे हैं। यहाँ क्या शुरू में लगाएंगे ना, क्योंकि इज को हमने मुकद्दम किया है। क्या आपके वालिद साहब देवबंद आ रहे हैं? क्या आपके वालिद साहब देवबंद आ रहे हैं? ही इज गोइंग टू हिज हाउस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के मतलब अगले महीने। इस अंग्रेजी जुमले का उर्दू तर्जमा करें। घर जा रहे हैं। वो अगले महीने अपने घर जा रहा है। अगले किताब से सबक सुनूंगा। किताब का नाम है मुंतखब अंग्रेजी लुगात, चैप्टर नंबर 20। मैं फ़िलहाल उर्दू बोलूँगा, आप लोगों को लाजिम है कि आप इंग्लिश बोलिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करने की इंग्लिश क्या होती है? उम्मीद करना। Expected. वेरी गुड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना। और तालीम हासिल करने की इंग्लिश बताइए। एजुकेटेड। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और दाखिल होने की इंग्लिश क्या है? दाखिल होना। इंटर्ड। वेरी गुड। और डियर स्टूडेंट्स, बाहर निकलने की इंग्लिश बताइए। बाहर निकलना। जब कभी आप रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हैं तो एक लफ्ज़ आपके सामने लिखा होगा, एग्ज़िट। इसी तरीके से आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं तो एग्ज़िट लिखा होता है। तो क्या मतलब होता है अंदर से बाहर निकलने की इंग्लिश बताइए।
exit, exit, exit. और बुनियाद रखने की इंग्लिश क्या होती है, ये तो बता दें डियर स्टूडेंट्स। establish, establish, establish. वंडरफुल, एक्सीलेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर, बिल्कुल सही तरीके से आपने सबक सुनाया लुगत का। और अब मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरे सामने कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक का अंग्रेज़ी तर्जमा करें। कल हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई टॉट यू सूरह अल फलक, गुज़श्ता कल मैंने सूरह अल फलक पढ़ाया था ना, यस या नो, जल्दी बताइए। लेसन नंबर 20 के साथ सूरह अल फलक पढ़ाया गया था। Yes, sir. Yes, sir. और आपको कहा गया था ना कि सूरह अल फलक का अंग्रेजी तर्जमा हिफ्ज याद करके लाइएगा, क्योंकि आप हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, आप इमाम साहब हैं, आपको इसके तर्जमे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने याद किया है, यस या नो? यस सर। चलिएगा, मैं ट्रांसलेशन के लिए आप रेडी रहें। तिलावत कलाम पाक मैं कर रहा हूँ, सुनिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I am speaking. I seek refuge with Allah from the accursed devil. Very good, dear students. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of In the name of the most merciful. merciful. قل أعوذ برب الفلق. say I seek The one and only. من شر ما خلق. From the what he has created. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. And from the And from the evil of envier when he envies. और मैं पनाह तलब करता हूँ हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत खूब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सबक सुन करके। और आप रियली आपने मेहनत किया, जिसका रिज़ल्ट मैं देख सकता हूँ और सारी दुनिया देख सकती है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी मौजूद है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई रिक्वेस्ट यू डैट रोज़ाना का सबक ऐसे ही याद करके लाइए। ग्रामर को हिफ्ज़ कीजिए, ट्रांसलेशन के जुमलों को बनाइए, रीडिंग के जुमलों को बार बार पढ़िए, जिससे आपकी रीडिंग स्किल सही हो जाए। वोकैबुलरी ज़रूर याद करें ताकि वर्ड मीनिंग की किल्लत बाकी न रहे। और डियर स्टूडेंट्स, स्पीकिंग पर ज़रूर तवज्जो दीजिए ताकि अंग्रेज़ी बोलचाल की मश्क हो जाए। अब मैं वाइट बोर्ड के ऊपर सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग का एक दर्स दूंगा। मैं आपके सामने इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए उन तमाम सवालात को लिखूंगा जिनका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होगा, उसी टेंस से जिस टेंस को हम लोगों ने गुज़श्ता कल पढ़ा है। उसके बाद एक नया सबक और नया टेंस पढ़ाऊंगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, सवाल मेरा होगा, जवाब आपका होगा। भिन्न भिन्न तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल को नोट डाउन करना ये आपके ऊपर लाजिम होगा। जल्दी से स्पीकिंग वाली कॉपी निकाल लीजिए और वाइट बोर्ड पर इंग्लिश कन्वर्सेशन यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हुए अंग्रेज़ी में एक गुफ्तगू मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। उस गुफ्तगू को आप कॉपी में सिर्फ सवाल लिख लीजिए और सवाल के नीचे जवाब के लिए एक लाइन छोड़ दीजिएगा, और फिर उस लाइन के नीचे स्पेस के तौर पर एक लाइन और छोड़ दीजिएगा। यानी जो भी जुमला मैं लिखूंगा उस जुमले को वाइट बोर्ड से अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके नीचे दो लाइनें छोड़ेंगे, एक लाइन में जिसी में आप जवाब लिखेंगे और दूसरी लाइन जिसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आप स्पेस को रखेंगे, जिससे कि बिल्कुल लाइनें एक दूसरे से मिली हुई ना हो, बल्कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो सवाल व जवाब के झैल में दो दो लाइन की होनी चाहिए।
रेडी हैं डियर स्टूडेंट्स? इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हुए जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, इसको लिखने के लिए रेडी हैं आप लोग? Yes, sir. चलिए फटाफट आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और इस वंडरफुल कन्वर्सेशन को लिख करके दिखाइएगा। हमारे क्लास का हेडिंग होगा इंग्लिश कन्वर्सेशन। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश CONVERSATION, इंग्लिश कन्वर्सेशन। और चूंकि हम लोगों ने कौन सा सबक पढ़ा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है। तो यूजिंग मैं लिख रहा हूँ PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा कोई एक्स्ट्रा जुमला नहीं होगा। जितने भी सवालात मैं लिखने वाला हूँ, तमाम सवालों का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होगा। सो आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब लोग तवज्जो दीजिए और ध्यानपूर्वक इस सबक को अपनी कॉपी में लिखिए। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम अपने सामने वाले शख्स से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सवाल करेंगे। देखो कन्वर्सेशन किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कन्वर्सेशन में एक शख्स होता है जो सवाल करता है और दूसरा बंदा है जो जवाब देता है। सवालों जवाब के ज़ैल में जो चीज़ वजूद में आती है उसी को इंग्लिश में कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू, मुहादसा कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हुए जो आप गुफ्तगू करेंगे उसमें आप सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हम मुसलमान हैं इसलिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन, इस्लामिक रूल रेगुलेशन के माध्यम से हम सबसे पहले सलाम करेंगे। आप सब लोग मेरे सलाम का जवाब दीजिए। माइक ऑन है, क्या जवाब दीजिएगा? वेरी गुड। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर मैं आपके सामने पूछता हूँ हाउ और डियर स्टूडेंट्स ARE यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग ब्रो? ब्रो का मतलब भाई, और अगर सिस्टर की बात कर रही है तो सिस बोल दीजिएगा। हाउ आर यू डूइंग ब्रो मतलब आप कैसे हैं। यहाँ पर आपसे आपके हाल खबर, आपका हाल खबर पूछा जा रहा है, आपकी कैफियत मालूम की जा रही है। देखोगे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग ये कौन सा टेंस है? तो आपका जवाब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं पूछना चाहता हूँ हाउ आर यू डूइंग ये कौन सा टेंस है? प्लीज टेल मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? क्योंकि यहाँ पर आर आया है जो प्रेजेंट को बताता है और डूइंग में ING आया है जो कि कंटिन्यूअस को बताता है। किसी भी वर्ब में अगर ING आ जाए तो वो कंटिन्यूअस को बताएगा और कहीं भी इज़ारेम नज़र आए तो डियर स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट को बताते हैं। तो इसका जवाब होगा आई एम डूइंग। देखो ये यू को आप आई करना, आई के मुवाफिक एम करना, डूइंग अपनी जगह पर, उसके बाद WELL वेल लाना। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर आंसर दीजिएगा। हाउ आर यू डूइंग ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन? बोलिए। I am doing well. वेरी गुड। यही जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगले सवाल पर तवज्जो दीजिएगा। अगला सवाल है व्हाट आर, ये हाउ आर यू डूइंग है, ये सवाल अलग है। व्हाट आर यू डूइंग, ये भी देखो डूइंग से ही सवाल हो रहा है और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नाउ अ डेज लिख देता हूँ। सवाल है सर व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो बताया ना आर यू डूइंग का जवाब कैसे होगा। यहाँ पर यू की जगह पर आई करो और आर की जगह पर एम करो और डूइंग की जगह पर कोई भी वर्ब चेंज करो। फिलहाल आजकल आप कर क्या रहे हैं? आजकल आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब चेंज होकर के लर्निंग लाएंगे। तो चुनांचे बहुत आसान जवाब आप देख सकते हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज। क्या बोलिएगा डियर स्टूडेंट्स? माइक ऑन करने जा रहा हूँ। पहले आप जुबानी तौर पर अपने जवाब को बोलिए, कल तहरीरी तौर पर लिख कर लाइएगा। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज डियर स्टूडेंट्स? I am learning English nowadays. आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज एक साथ बोला करें वरना बोलने का मौका खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं
तो कहाँ सीख रहे हैं? तो यहाँ पर मैं पहले हाउ लाया था, व्हाट लाया, अब वेयर ला रहा हूँ। और वेयर के बाद यू, नहीं आर, और आर के बाद यू। यहाँ आर को यू पर क्यों मुकद्दम किया? क्योंकि सवालिया जुमला है। वेयर आर यू लर्निंग, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। एक फ्रॉम लास्ट में डालिएगा। आप ये फ्रॉम शुरू में लाना चाहते तो भी ला सकते थे। आप कह सकते थे कि वेयर फ्रॉम आर यू लर्निंग इंग्लिश। इसका भी मतलब यही होगा कि आप कहाँ से अंग्रेजी सीख रहे हैं। और वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम का मतलब भी यही होगा कि आप कहाँ से अंग्रेजी सीख रहे हैं। सो हे गाइस, नाउ टेल मी, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम। देखो, फ्रॉम के जवाब में IIEL देवबंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ? IIEL। और डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं ये देवबंद है। इसी नाम से मेरा एप्लीकेशन है जिस पर आप क्लास ले रहे होंगे, अगर रिकॉर्डेड माध्यम से क्लास ले रहे हैं। और अगर नहीं एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। तो यू यहाँ पर क्या हो गया? आई हो गया। आर की जगह पर एम हो गया। लर्निंग अपनी जगह पर है, आई एम लर्निंग, और बस इससे पहले फ्रॉम लगेगा। और बहुत आसान जवाब, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम IIL। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट्स, कैसे जवाब दोगे इस जुमले का, वेयर आर यू लर्निंग फ्रॉम का? जल्दी बता दीजिए। I am learning from I am learning IIL from Global. IIEL. पहले आप फ्रॉम लाएंगे फिर IIL। आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम IIL। डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल, हु इज टीचिंग इंग्लिश। कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है? IIL में टीचर कौन है? हु इज टीचिंग इंग्लिश। ये जुमला भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। हु के जवाब में हमेशा किसी बंदे का नाम लिया जाता है। जब भी कोई बंदा हु यूज करे तो यहाँ पर नाम लेंगे। हमारे सर का नाम क्या है? बोलो, खुर्शीद सर। और यहाँ इनके साथ इज लाएंगे और टीचिंग इंग्लिश अपनी जगह पर। जवाब तैयार है। हु इज टीचिंग इंग्लिश, तो जवाब होगा खुर्शीद सर इज टीचिंग इंग्लिश। Khurshid sir is बोलो, क्या teaching इंग्लिश होगी? English. जल्दी बोलो। Khurshid sir is teaching English. Khurshid sir is teaching English. Very good. Okay, now I am going to ask you the next question. How are you improving? देखना जरा, how are you improving your English? Dear students, how are you improving your English का मतलब है कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर कर रहे हैं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहाँ पर जवाब में दीजिएगा, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास, आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, तो यू की जगह पर वही है ना, पुरानी बात, आई करना है, आई के साथ एम करना है। इम्प्रूविंग के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिसिंग कर दीजिए कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश या आई एम हैविंग प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की मशक कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सवाल तवज्जो से सुनिएगा, हाउ आर यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज। I am practicing English. To speak आई English. एम हैविंग प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश बोल दो, या आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश बोल दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया हाँ या ना? अगले सवाल की तरफ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। एक अगला सवाल, हाउ के साथ आर, आर के बाद यू। वाज़ेह रहे कि यू आई से बदल जाएगा जवाब देने के लिए, और यहाँ पर फीलिंग और यहाँ पर नाउ कर दे रहा हूँ। हाउ आर यू फीलिंग नाउ। जब आप क्लास ले रहे हैं तो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आपको बेहतर लग रहा है, नहीं लग रहा है, इस मौजू पर हमें बताएं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप क्लास ले रहे हैं? तो नाउ टेल मी डियर, कैसा महसूस कर रहे हैं? I am feeling. फीलिंग के साथ आप वेल भी ला सकते हैं, फीलिंग के साथ आप बेटर ला I सकते am हैं। feeling well. आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग बेटर, इस तरीके से कुछ जवाब आप दे सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल, आर यू वर्किंग हार्ड, ARE, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यू लगाया और WORKING, वर्किंग हार्ड ऑन स्पीकिंग। क्या आप अंग्रेजी बोलने पर तवज्जो दे रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं? तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो जवाब बहुत आसान है, आप बोलिएगा यस सर, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश बोलचाल पर तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर,
आर यू वर्किंग हार्ड ऑन स्पीकिंग? यस और नो? जल्दी बोलिए। I am. Yes, sir. I am working hard on लेडीज speaking. एंड जेंटलमैन, अगला सवाल। जब इतनी बेहतरीन गुफ्तगू हुई तो मैंने आपसे बोला, ओह नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर, या नाइस टू टॉक टू यू भी बहुत अच्छा जुमला होगा। नाइस टू NI, देखिएगा, नाइस टू TALK टॉक, और डियर स्टूडेंट्स टू यू, कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे भी तो अच्छा लगा। तो जवाब में आप कैसे दीजिएगा? आपको भी अगर अच्छा लगा तो आंसर दीजिएगा आई एम ऑल्सो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सेम टू यू भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सिंपल जवाब कर दीजिएगा सेम टू यू, पूरा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इट्स एनफ, ये काफ़ी होगा, सेम टू यू। या आप इसी को बोल दिए नाइस टू टॉक टू यू टू, यहाँ लास्ट में भी टू ले आइएगा, TOO वाला, ठीक है, TOO वाला, तो इससे भी जवाब सही हो जाएगा। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर, वाइट बोर्ड पर ये हमारा पूरा का पूरा भर गया है। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ और जल्दी से आप लोग इसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आप बाद में इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिलहाल जो लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं इसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूं। अगर बाय द वे आप दौरान दर्स इसे नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप फ़ोटो से अपने कॉपी में लिखिएगा, और कॉपी के अंदर सिर्फ क्वेश्चन मत लिखिएगा, कॉपी के अंदर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखिएगा। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? यस या नो? जल्दी बोलिए, क्या आप ये कन्वर्सेशन तैयार करके लाएंगे? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप ये चाहते हैं कि इसका फोटो भेज दिया जाए तो अभी जस्ट मैं इसका फोटो भेज दे रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, बस अब आप लगे रहिएगा, 12:30 तक इंशाल्लाह हमारा क्लास पूरा हो जाएगा। क्लास इज इट ओके नाउ? बताइए, क्या ये व्हाइट बोर्ड अभी बिल्कुल क्लियर समझ दिख रहा है आपको? यस या नो? Yes, sir. तवज्जो दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेशली ग्रामर में लेसन नंबर 21 यानी 21वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन सा 21वां सबक है? ये हमारा 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 21वां सबक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये सबक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस सबक को समझाऊंगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, हर चीज़ की एक ज़िद होती है। जैसे ये है DAY डे, इसकी ज़िद क्या है? NIGHT नाइट, ठीक है। ये हमारा मैन, इसका जो है ना क्या होता है ज़िद? वुमन, ठीक है। मैन का ज़िद क्या है? वुमन होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये है RIGHT राइट, तो इसका ज़िद क्या होगा? WRONG रॉन्ग। और डियर स्टूडेंट्स, ये एक है ACTIV एक्टिव, तो इसका ज़िद क्या होता है? बोलो, PASSIVE पैसिव। मैं यही हमारा मुद्दा है, यही समझाना चाहता हूँ। गुज़श्ता कल हम लोगों ने जिस क्लास को पढ़ा था उसका नाम था डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। अब मैं जो आपके सामने दर्स देने जा रहा हूँ इसका नाम है PRESENT प्रेजेंट और CONTINUOUS कंटिन्यूअस। और डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस के बाद हमने किया TENSE टेंस, और ये ले लीजिए PASSIVE पैसिव वॉइस। अलशिया उतुअरफ़ु बिअज़दादिहा, चीज़ें अपने ज़िद से ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस को समझ गए हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस भी आप बहुत जल्द बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। लाजिम है कि तवज्जो दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है? तो कंटिन्यूअस तो आपको पता है ना कि कंटिन्यूअस उसको कहते हैं कि जहाँ से कोई कार्य शुरू हुआ और वो चल रहा है और आप यहाँ पर हैं, ये आपकी पोजीशन है डियर स्टूडेंट्स। पीछे आपने किसी सब काम को शुरू तो किया है और उस काम का कुछ हिस्सा आपने कर दिया है, अभी वो काम फिनिश नहीं हुआ है, बल्कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तकल्लुम के वक्त वो काम जारी है, वो काम चल रहा है, तो इसे कंटिन्यूअस बोलेंगे। और चूंकि बात टुडे की है, TODAY टुडे की है, NOW नाउ का है, दीज डेज का है, THESE दीज, और डेज, दीज डेज का मतलब आजकल होता है,
अब का है, आज का है, आजकल की बात है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट लाजिम है। तो ये प्रेजेंट हो गया और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस इसलिए हो गया कि काम जारी है। और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? जिसमें करने वाला मालूम ना हो, करने वाला मालूम ना हो। यहां पर पैसिव वॉइस उसे कहा जाता है जिसके अंदर किसके ऊपर काम किया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो शय ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो शख्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। और जिसके ऊपर काम किया जाता है डियर स्टूडेंट्स उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत की जाती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाले वाक़यात को जिक्र किया जाता है, इसीलिए डियर स्टूडेंट्स इसे पैसिव वॉइस कहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का। तो जवाब है कोई काम तकल्लुम के वक्त, तकल्लुम के वक्त का मतलब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, कोई काम तकल्लुम के वक्त जारी है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? बोलो, जारी है, लेकिन उसका करने वाला मालूम नहीं, लेकिन उसका उस काम का करने वाला मालूम नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, कोई काम करना किया तो जा रहा है तकल्लुम के वक्त, क्या लिखा मैंने? कोई काम तकल्लुम के वक्त जारी है लेकिन उसका करने वाला मालूम नहीं। मतलब काम किया जा रहा है, मतलब काम किया जा रहा है लेकिन उसका करने वाला मालूम नहीं। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस को यूज़ करेंगे। मुझे जल्दी से बताइएगा डियर स्टूडेंट्स कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या नहीं? तारीफ समझ में आई कि नहीं आई? जी डियर स्टूडेंट्स, कोई भी, आप कोई भी, जैसे कुछ जुमले पर गौर कर लेते हैं। आप कहते हैं इंग्लिश बोली जा रही है, मैंने यहाँ पर सवाल किया कौन बोल रहा है? इंग्लिश बोली जा रही, कोई तो बोल रहा होगा। इंग्लिश बोली जा रही है, कौन बोल रहा है? आई डोंट नो, मालूम नहीं। बोलने वाला कौन है? मालूम नहीं, जुमले से कुछ नहीं पता चल रहा है। ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस होगा। क्यों? इसलिए कि रही ने दलालत किया कंटिन्यूअस पर, सी पर, है ने दलालत किया प्रेजेंट पर यानी पी पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। करने वाला मालूम नहीं इसलिए पैसिव वॉइस हो गया। बताइए आपको ये समझ में आया कि ये जुमला कैसे पैसिव वॉइस हो गया? हाँ या ना में जल्दी बताइए प्लीज। एक जुमला और देख लीजिएगा। यस सर। एहतिजाज किया जा रहा है, करने वाला कौन है? मालूम नहीं। यहां पर है ने दलालत किया सी पर, नहीं रहा ने, और है ने दलालत किया पी पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, करने वाला मालूम नहीं, पीवी पैसिव वॉइस। क्लास का नाम निकल गया। बहुत आसान है क्लास का नाम निकालना, और जिसको उर्दू जुमलों के अंदर क्लास का नाम निकालने का ढंग पैदा हो गया ना, तो गोया कि वो कमाल है सर। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए करना क्या पड़ता है? बेसिक से इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले देखो कि जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो कौन है, उसे ढूंढ करके बाहर निकालो और नंबर 1 पर उसी की अंग्रेजी लिखो, ऑब्जेक्ट की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इज या आर या एम में से कोई एक लाएंगे। एक जुमले में दो नहीं आएगा, यानी एक ही जुमले में इज भी आ गया, आर भी आ गया, एम भी आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट चूंकि देखो ये कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस को हमेशा आईएनजी फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए डियर स्टूडेंट्स? आईएनजी फॉर्म। और ये पैसिव है और पैसिव को हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब यहाँ तकरार पैदा हो जा रहा था, टकराव हो रहा था। जब कभी टकराव हो जाए तो बीच का कोई हल का रास्ता निकालते। क्या टकराव हो रहा था? पैसिव ये कह रहा था कि मुझे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, कंटिन्यूअस ये कह रहा था कि मुझे मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। इस टकराव से बचने के लिए हमने एक तरकीब निकाली। हमारे पास थे एक मिस्टर बी। जब कभी भी हम परेशानी में होते हैं ना तो ये मिस्टर बी को बुला करके लाते हैं।
ये हमारे मसाइल हल करते हैं। मैंने उनको बुलाकर लाया और बोला कि भाई कंटिन्यूअस तुम्हें क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए, चलो लगा दो आईएनजी, तो बी में आईएनजी लगा दिया। अब जो कंटिन्यूअस में जैसे ही आईएनजी आएगा कंटिन्यूअस का तकाजा पूरा हो जाएगा। इस वक्त जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, लोग जो है ना पर डियर स्टूडेंट्स इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर का क्या मांग रहे हैं, रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। सारे तरफ पूरे दिल्ली में हल्ला हो गया है, लाठियां चार्ज हो गई, सड़क से संसद तक पूरा हंगामा ही हंगामा है। किस बात का भाई, एजुकेशन मिनिस्टर रिजिग्नेशन दे। वो जो बच्चे मरे हैं उनके लिए अकाउंटेबिलिटी का आप जिम्मेदारी लें। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कल बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो बहरहाल एहतजाज हो रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो एहतजाज हो रहा है। तो यहाँ पर उनका जो तकाजा पूरा हो जाएगा तो एहतजाज खत्म। वैसे ही ये कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रहा था आईएनजी के लिए और आईएनजी इसको मिल गया, लिहाजा डियर स्टूडेंट्स इसका प्रोटेस्ट खत्म, इसका तकाजा खत्म। और पेसिव वॉइस कहता है कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसके थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की शक्ल में यहाँ ले आओ। प्लस अगर जुमले में बाई प्लस सब्जेक्ट लाना चाहते हो तो बाई प्लस सब्जेक्ट ले आइए, जुमला तैयार। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ये है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इंग्लिश को ले आता हूँ, इज़ को मैंने इंग्लिश पर मुकद्दम किया। क्यों भाई, इज़ को क्यों मुकद्दम किया? क्योंकि इंग्लिश एक है और वाहिद के लिए इज़ लाया जाता है, इज़ इंग्लिश। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बीइंग लाया और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट ले आया। सवालिया निशान, इज़ इंग्लिश बीइंग टॉट? क्या अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है? ये मेरा सवाल है। तो जवाब देने वाले ने कहा कि यस सर। क्या बोला? यस सर। जिसको पढ़ाया जा रहा है उसको शुरू में लेकर के आओ। किसको पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश को। तो इंग्लिश शुरू में ले आया। ऑब्जेक्ट इज़ारम में से कोई एक लाइए, इज़ ले आया। बीइंग ले आइए, आंख बंद करके बीइंग ले आया। और डियर स्टूडेंट्स वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइए, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट ले आया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज इंग्लिश बीइंग टॉट? जवाब है यस सर, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। और अगर कहना है कि नहीं सर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ फटाफट कर दीजिए ENGLISH इंग्लिश और इज और नॉट यहाँ पर लगाइएगा। उसके बाद लाएंगे बीइंग और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स TAUGST टॉट। अब बताइए क्या जुमला हो गया? नो, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट। ब्रदर्स एंड सिस्टर फटाफट मैं तवज्जो चाहूंगा। इज इंग्लिश बीइंग टॉट? यस में जवाब दीजिए। इज इंग्लिश बीइंग टॉट? Yes, sir. English is being taught. यस सर, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। और अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है तो नो में जवाब दीजिए। नो सर, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट। No, English is not being taught. अब एक सवाल आपके सामने है, क्या यहाँ डबल IEL में अरेबिक पढ़ाई जा रही है? इज अरेबिक बीइंग टॉट इन डबल IEL? तो आपका जवाब क्या है? यस सर या नो सर? No, 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 it is sir. not being taught. Arabic is not being taught, but English is being taught. डबल IEL में अरेबिक तो नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन सर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरा वाइट बोर्ड वाला लेक्चर पूरा हुआ। बहुत खूब कि आपने ध्यानपूर्वक सबक को समझा। डियर स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा। अब मैं बुक वर्क आपको समझाने जा रहा हूँ, तो मैं माइक सबसे पहले बंद कर दूँ ताकि परेशानी ना हो। मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर, मुसन्निफ़ खुर्शीद अनवर, जो कि आपके सामने हम कलाम है, उन्हीं की लिखी हुई किताब है। और इस किताब को जस्ट ये इस सबक को, बल्कि चैप्टर नंबर 21 को अभी इन्होंने यानी मैंने आपको समझाया है। अब ये बात समझ में आ गई है, तो आइए ज़रा इबारतें पढ़कर देखते हैं कौन कौन सी पॉइंट इसमें हिफ्ज़ करनी है, उसकी निशानदेही करूँगा। किसके ऊपर आपको तहरीरी शक्ल में मेहनत करनी है उसकी भी निशानदेही करूँगा। 21वां दिन, 21वां सबक। अजीज़ क़ारीन, आइए अब हम 21वें सबक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पेसिव वॉइस पर एक गहरी नज़र डालते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के दरमियान मानवी और कवायद का बुनियादी फ़र्क अच्छी तरह समझते हैं। इस पूरी किताब में हर क्लास के एक्टिव वॉइस के बाद उसके पेसिव वॉइस का तज़किरा करना मेरा मामूल रहेगा, ताकि आप हर सबक के एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस को बखूबी समझ सकें। ब्रदर्स एंड सिस्टर ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस, फ़ेल हाल इस्तिमरारी मजहूल। पहले हम तारीफ समझते हैं। अगर कोई काम ज़माने हाल में शुरू होकर जारी हो और काम वो काम अभी ख़त्म ना हुआ हो, बल्कि तकल्लुम के वक्त वो काम जारी हो,
जिससे कि हम समझे कि ये कंटिन्यूअस है, और जुमले में फ़ाइल का जिक्र न करना भी मकसूद हो, जिससे समझ में आए कि पेसिव वॉइस है। मसलन अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाने वाला कौन है? मालूम नहीं। तुम्हें बुलाया जा रहा है, बुलाने वाला कौन है? मालूम नहीं। जैद को मारा जा रहा है, मारने वाला कौन है? मालूम नहीं। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस यानी फ़ेल हाल इस्तिमरारी मजहूल के क्लास इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन? फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये जो गोल दायरे के अंदर ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यही एक स्ट्रक्चर 1000 जुमलों को बनाने में आपको मदद देगा। लिहाजा स्ट्रक्चर हरगिज़ नहीं, स्ट्रक्चर को याद करने में बिल्कुल भी आपको कमी और कोताही के साथ काम नहीं लेना है, सुस्ती और काहली नहीं करनी। आपको आइंदा कल याद करना है लेसन नंबर 21 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, सीधे रूल ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और ये फुल कंजुगेशन। आई एम बीइंग टॉट, यू आर बीइंग टॉट, ही इज बीइंग टॉट, शी इज बीइंग टॉट, आई एम नॉट बीइंग टॉट, यू आर नॉट बीइंग टॉट, ही इज नॉट बीइंग टॉट, शी इज नॉट बीइंग टॉट, एम आई बीइंग टॉट, आर यू बीइंग टॉट, इज ही बीइंग टॉट, इज शी बीइंग टॉट, वाई एम आई बीइंग टॉट, वाई आर यू बीइंग टॉट, वाई इज ही बीइंग टॉट, वाई इज शी बीइंग टॉट। इसमें थोड़ा तखफीफ भी हो गया। किस बात का तखफीफ हो गया? कि आज हाफ कंजुगेशन नहीं है, सिर्फ क्लास का नाम लिखना है, डियर स्टूडेंट्स याद करना है, रूल याद करना है, कंजुगेशन याद करना है। आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है, शी इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा, यू आर नॉट बीइंग टॉट, तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा, ही इज नॉट बीइंग टॉट, शी इज नॉट बीइंग टॉट। एम आई बीइंग टॉट, क्या मुझे पढ़ाया जा रहा है, आर यू बीइंग टॉट, इज ही बीइंग टॉट, इज शी बीइंग टॉट, वाई एम आई बीइंग टॉट, मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई आर यू बीइंग टॉट, वाई इज ही बीइंग टॉट, वाई इज शी बीइंग टॉट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि ये मुंदरज झैल जो जुमले हैं इनको आप बार बार पढ़िए। कितने बार पढ़ना है? 10 बार। वो पीछे मैं समझा चुका हूँ। जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, तुम पढ़ाया जा रहे हो, यू आर बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाई जा रही है, शी इज बीइंग टॉट। अगर आप इसे बार बार पढ़ करके नहीं लाएंगे तो आइंदा कल सबक में जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए लाजिम है कि आप इसे बार बार पढ़िए, 5 मरतबा देखकर 5 मरतबा ज़ुबानी पढ़िए, ताकि ये जुमले आपके जहनों में महफूज हो जाए और फिर जब भी प्रैक्टिस कराया जाए तो आप बेहतर रिजल्ट दे सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी तक सबक चल रहा था ये था हमारा ग्रामर, और मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के हर एक सबक में लेसन नंबर 20 से ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन भी मौजूद है। ये उर्दू में तमरीन है। इस तमरीन को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना, उर्दू के जुमले को फिर इसकी अंग्रेज़ी बनाकर ले आइए। आपका काम किया जा रहा है, योर वर्क इज़ बीइंग डन। इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज़ बीइंग स्पोकन। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, द चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। सबक सुनाया जा रहा है, द लेसन इज़ रिसाइटेड। एक मीटिंग बुलाई जा रही है, अ मीटिंग इज़ बीइंग कॉल्ड। मेरे भाई को मारा जा रहा है, माई ब्रदर इज़ बीइंग बीटेन। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग इंसल्टेड। मुझे क्यों बेइज्जत किया जा रहा है, वाई एम आई बीइंग डिसऑनर्ड या डिसरिस्पेक्टेड। उसे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, वाई इज़ ही नॉट बीइंग कॉल्ड। कमरे की सफाई की जा रही है, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड। मेरे घर को पेंट किया जा रहा है, माई हाउस इज़ बीइंग पेंटेड। आपका मोबाइल रिपेयर हो रहा है, योर मोबाइल इज़ बीइंग रिपेयर्ड। मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, वेयर एम आई बीइंग टेकन। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब्ड। क्या इस केस की छानबीन की जा रही है, इज़ दिस केस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको इन अंग्रेजी के जुमलों को उर्दू भी बनाना है। कैसे कीजिएगा? मुस्लिम्स आर बीइंग हरास्ड हियर। यहाँ मुसलमानों को हरास किया जा रहा है यानी परेशान किया। हाउ मच मनी इज़ बीइंग इन्वेस्टेड, कितने पैसे लगाए जा रहे हैं। दिस मैप इज़ बीइंग डाउन, इस नक्शे को बनाया जा रहा है। व्हेन इज़ दिस वर्क बीइंग डन, इस काम को कब किया जा रहा है। हले लुगत मौजूद है, इसे करके लाइए। सबसे इंपॉर्टेंट अब आपके सामने एक एक्सरसाइज आ रहा है, एक्टिव को पेसिव में चेंज करना। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पेसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पेसिव बनाना है। कैसे बनेगा? आई एम रीडिंग अ स्टोरी। देखो एक्टिव वॉइस में जो लास्ट में आता है, पेसिव वॉइस में वो सबसे शुरू में चला जाता है। तो आई एम रीडिंग अ स्टोरी में अ स्टोरी बिल्कुल लास्ट में आती है, इसको बिल्कुल शुरू में ले जाओ। अ स्टोरी, उसके बाद इज लाओ, अ स्टोरी इज, और उसके बाद लाओ बीइंग, अ स्टोरी इज बीइंग। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रेड, अ स्टोरी इज बीइंग रेड। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, उल्टा क्या होगा? अ सॉन्ग इज बीइंग संग। द कारपेंटर इज मेकिंग फर्नीचर, उल्टा क्या होगा? पेसिव कैसे होगा? फर्नीचर इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर।
आई एम टीचिंग द चिल्ड्रेन उल्टा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पैसिव कैसे होगा, द चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। जैद इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अपोजिट बना दीजिए, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय जैद। माय ब्रदर इज यूजिंग योर मोबाइल, उल्टा क्या होगा, योर मोबाइल इज बीइंग यूज्ड बाय माय ब्रदर। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये वंडरफुल सबक समझ में आ गया होगा। 3 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना है। 22वां सबक हम कल, ये है हमारा 21वां सबक डियर स्टूडेंट्स। 21वें सबक में एक सबक मुंतखब अंग्रेजी लुगत से तवज्जो दीजिए। 21वां सबक है रेगुलर वर्ब, एडिट एडिटेड एडिटेड जोड़ना दुरुस्त करना, एजेक्ट एजेक्टेड एजेक्टेड खारिज करना, एलॉप एलॉप्ड एलॉप्ड भागकर शादी करना, इमिट इमिटेड इमिटेड छोड़ना, इनकाउंटर इनकाउंटर्ड इनकाउंटर्ड मुकाबला करना, इंक्वायर इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड का मतलब पूछताछ करना। और नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स इरेडिकेट इरेडिकेटेड इरेडिकेटेड जड़ से उखाड़ फेंकना। एक्सरसाइज 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 का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स मश्क करना। और नेक्स्ट वर्ड है एग्जामिन एग्जामिन्ड एग्जामिन्ड इम्तहान लेना। एक्सचेंज एक्सचेंज्ड एक्सचेंज्ड का मतलब अदला बदला करना। एग्जाइल एग्जाइल्ड एग्जाइल्ड का मतलब जिलावतन करना। एक्सक्लोड एक्सक्लोडेड एक्सक्लोड निकालना मुस्तस्ना करना। और अर्न 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 का मतलब होता है कमाना। एडिफाई एडिफाइड एडिफाइड शान बढ़ाना। इको इकोड इकोड गूंजना। यहाँ पर देख लीजिएगा बिजनेसमैन, मिल्कमैन, फिशरमैन, वॉशरमैन, पोस्टमैन, ऑयलमैन और डियर स्टूडेंट्स लेक्चरर, ड्राफ्टमैन और इसी के साथ साथ सेल्समैन है। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग इन द क्लास। क्लास में बने रहने के लिए, अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्दी से एक छोटा सा सबक इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन के मौजू पर देने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके जुमलों को ज़ुबानी याद करके लाने की कोशिश कीजिए। यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे अब इजहार माफ़ी ज़मीर के लिए। कहते हैं इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन व शांति का मज़हब है। इस्लाम इज़ अ ट्रू रिलीजन। इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन और इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। इस्लाम इज़ द ओनली वन रिलीजन विच इज़ एक्सेप्टेड बिफोर अल्लाह। इस्लाम ही वो तन्हा मज़हब है जो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। इट टीचेज अस टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। ये हमें दर्स देता है कि हम अमन सुकून और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारें। डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। मुसलमान एक खुदा पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर। एंड वी मस्ट लव ऑल पीपल। हमें तमाम लोगों से ज़रूर प्यार करना चाहिए। एंड ट्रीट देम काइंडली, और उन पर मेहरबानी के साथ मामला करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगले पैराग्राफ पर तवज्जो देंगे। इस्लाम टीचेज अस टू स्पीक द ट्रूथ। इस्लाम हमें सच बोलने का दर्स देता है। एंड डू गुड डीड्स, और नेक अमाल करने का दर्स देता है। इट टेल्स अस टू हेल्प द पुअर एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यह हमें गरीबों को मदद करने का हुक्म करता है और बड़ों की इज्जत करने का हुक्म करता है। इट ऑल्सो टीचेज अस टू बी ऑनेस्ट, काइंड एंड हम्बल। यह हमें इस बात का भी दर्स देता है कि हम लोगों के तई मेहरबान और शफीक और डियर स्टूडेंट्स शरीफ बन करके रहे। अ ट्रू मुस्लिम डज नॉट हार्म एनीवन। एक सच्चा मुसलमान कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। ही डज नॉट लाई और चीट। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता और किसी से झूठ नहीं बोलता। ही कीप्स हिमसेल्फ क्लीन एंड प्रेज अल्लाह रेगुलरली। और वो अपने आप को साफ सुथरा रखता है और अल्लाह की रोज़ाना मुसलसल अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ता है। फिर से देख लीजिएगा, ही कीप्स हिमसेल्फ क्लीन, वो अपने आप को साफ सुथरा रखता है। प्रेज टू अल्लाह रेगुलरली, और रोज़ाना अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ता है। ही फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ द कुरान, होली कुरान, और ये कुरान करीम की तालीमात की पैरवी करता है। एंड द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। इस्लाम मीन्स सबमिशन टू अल्लाह। इस्लाम का मतलब है अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना। इट ब्रिंग्स पीस टू हार्ट। ये दिलों में अमन और शांति पैदा करता है। मुस्लिम ग्रीट ईच अदर विद द वर्ड्स अस्सलामु अलैकुम, विच मीन्स पीस बी अपॉन यू। मुसलमान एक दूसरे से जब कभी मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम के ज़रिए से सलाम करते हैं,
जिसका मतलब होता है तुम्हारे ऊपर दरूद सलाम नाजिल हो। इस्लाम टीचेस पीस इन द फैमिली एंड सोसाइटी एंड विद ऑल पीपल। इस्लाम दर्स देता है अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में और तमाम लोगों के साथ अमन व शांति बनाकर रखने का, शांति से रहने का दर्स देता है। इट इज़ अ रिलीजन ऑफ लव। ये मोहब्बत, मर्सी, रहमदिली एंड जस्टिस और इंसाफ का मजहब है। एवरी मुस्लिम शुड बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हर एक मुसलमान को एक अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए दूसरों के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग स्टे टिल नाउ। अभी तक जमे रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा ये सबक पूरा हुआ और आज के भी इस सबक में हम लोगों ने ग्रामर, लुगत, रीडिंग, ट्रांसलेशन, स्पीकिंग, कन्वर्सेशन, हर मौजू पर क्लास लिया है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सबक दिए गए हैं इसे पूरा करके लाना है आपको। इसके लिए थोड़ा टाइम फारिग कीजिएगा। मैं सबक काफ़ी थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि सबक तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा वक्त फारिग कीजिएगा तो आसानी से ये वर्क पूरा हो जाएगा। अगर आप रोज़ाना का वर्क पूरा करते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। आप अंग्रेज़ी बोलना, लिखना, पढ़ना सब शुरू कर दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।